بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم اسد راجہ, میتھمیٹکس انسٹرکٹر tutoria.pk. ابھی ہم میتھمیٹکس گریڈ 10 کو سٹارٹ کریں گے. چیپٹر نمبر 1 کوارٹیٹک ایکویشنز. اس کے اندر ہم 4 چیزوں کو ڈسکس کریں گے. جو پہلی چیز ہے وہ ہے واٹ از کوارٹیٹک ایکویشن, یعنی اس کی جنرل یا اسٹینڈرڈ فارم کیا ہوتی ہے. دوسری چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی کوارٹیٹک ایکویشن کو سالو کس طرح کرتے ہیں. کتنے ایسے میتھڈز ہیں جو ہم اپلائی کر کے کسی بھی گیون کوارٹیٹک ایکویشن کو سالو کر سکتے ہیں. اور جو تیسری چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ ڈفرینٹ طرح کی ایکویشنز ہوں گی جو کہ ریڈیوسیبل ٹو کوارٹیٹک فارم ہوں گی. یعنی کہ ہمیں ایکویشنز گیون ہوں گی, ہم ان کو کوارٹیٹک فارم میں لکھ کر سالو کر لیں گے, یعنی کہ ٹرانسفارم کرنے کے بعد. اور جو چوتھی چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ریڈیکل ایکویشنز. آئیے اس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. چیپٹر نمبر 1 ہے کوارٹیٹک ایکویشنز. ٹاپک نمبر 1 ہے اسٹینڈرڈ فارم آف اے کوارٹیٹک ایکویشن. تو وٹ از دا اسٹینڈرڈ فارم اور جنرل فارم آف کوارٹیٹک ایکویشن. ہمارے مائنڈ میں یہ پہلا سوال یہ آنا چاہیے کہ کسی بھی کوارٹیٹک ایکویشن کی جنرل یا اسٹینڈرڈ فارم کیا ہوتی ہے. یہ دیکھیں, یہ اس کی جنرل فارم ہے ax² + bx + c = 0. اس کے اندر جو ویریبل ہے وہ x ہے, اور a b اور c جو ہیں یہ اس کے اندر کوفیشنٹس ہیں, کانسٹنٹس ہیں. a b c جو ہیں وہ تینوں کی تینوں ریئل نمبرز ہیں. اور سب سے جو اہم بات ہے اس پوری ایکویشن کے اندر, a کا نان زیرو ہونا ضروری ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک اسٹرانگ ریزن ہے. اگر a 0 ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایکویشن جو ہے یہ کوارٹیٹک نہیں رہتی. تو جو جنرل فارم ہے, یہ اسٹینڈرڈ فارم ہے کوارٹیٹک ایکویشن کی, وہ ہے ax² + bx + c = 0. اس کے اندر a b c جو ہیں وہ تینوں ریئل نمبرز ہیں. اور سب سے جو اہم بات ہے اس کے اندر وہ کوفیشنٹ آف x² جو ہے اس کو نان زیرو ہونا ضروری ہے. اگر وہ 0 ہو گیا پھر یہ کوارٹیٹک ایکویشن نہیں ہوگی. یعنی x² کا جو کوفیشنٹ ہے اس کا نان زیرو ہونا اہم ہے. اگزامپل دیکھتے ہیں اس کی. یہ دیکھیں, یہ ہمارے پاس 2x² + 4x + 6 = 0 ہے, اور یہ کوشچن یہ ہے کہ یہ کوارٹیٹک ایکویشن ہے یا نہیں ہے. تو یس, یہ کوارٹیٹک ایکویشن ہے اور یہ اسٹینڈرڈ فارم میں ہے. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں, اسی ایکویشن کو 2x² + 4x + 6 = 0, اس کو ہم کمپیئر کریں ax² + bx + c = 0 کے ساتھ, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ a کی ویلیو جو ہے وہ 2 آ گئی, b کی ویلیو جو ہے وہ 4 آ گئی, اور c جو ہے وہ 6 آ گیا. یہاں دیکھیں x² کا جو کوفیشنٹ ہے اس ایکویشن کے اندر وہ 2 ہے, x کا جو کوفیشنٹ ہے وہ 4 ہے, اور آگے 6 ہے. تو یہ اسٹینڈرڈ فارم میں ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں, x² + 5x + 6 = 0. یہ بھی کوارٹیٹک ایکویشن ہے اور یہ بھی اسٹینڈرڈ فارم میں ہے. یہاں پر x² کا جو کوفیشنٹ ہے وہ 1 ہے, یعنی a کی ویلیو 1 ہے, b کی ویلیو 5, c کی ویلیو 6. اچھا, یہ بھی جو ہم نے سیکنڈ ایگزامپل لکھی ہے آپ کے سامنے, ہم دیکھ رہے ہیں x + 1/x + 2 + x + 2/x + 3 = 25/12. اب یہ بھی بیسیکلی کوارٹیٹک ایکویشن ہے, لیکن یہ اسٹینڈرڈ فارم میں نہیں ہے. اس کو سمپلیفائی کرنے کے بعد ہم اسٹینڈرڈ فارم میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اچھا, ایگزامپل اور دیکھتے ہیں. جیسے ax² + bx + c = 0 ہمارے پاس جنرل فارم آف کوارٹیٹک ایکویشن ہے, تو -3x² + 12 = 0 یہ بھی ہمارے پاس کوارٹیٹک ایکویشن ہے, بٹ یہ پیور کوارٹیٹک ایکویشن کہلاتی ہے, کیونکہ اس کے اندر دیکھا جائے تو x والی ٹرم جو ہے وہ مسنگ ہے. لہٰذا a کی ویلیو جو ہے وہ -3 ہے, یعنی x² کا جو کوفیشنٹ ہے وہ -3 ہے, اور جو c کی ویلیو ہے وہ 12 ہے, جبکہ b جو ہے وہ 0 ہے, یعنی کہ x والی ٹرم مسنگ ہے. اچھا, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں 3x³ - 2x² + 5x + 6 = 0. اب دیکھیں یہ ہمارے پاس کوارٹیٹک نہیں ہے, یہ ہمارے پاس کیوبک ایکویشن ہے, کیونکہ اس کی ڈگری جو ہے اس کے اندر 3 آ رہا ہے, x کی پاور 3 آ گیا, لہٰذا یہ کوارٹیٹک نہیں ہے.
x की पावर 2 का होना जरूरी है किसी भी इक्वेशन का क्वाड्रेटिक होने के लिए। अच्छा ये देखें 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक है नहीं है, ये हमारे पास लीनियर है। अच्छा अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास तीन वेल नोन मेथड्स कौन से हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मशहूर किस्म के तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं? देखें पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, फिर दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने तीन मेथड्स के नाम जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें हम फैक्टर्स को बनाएंगे। दूसरा मेथड जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसमें हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। तीसरा जो मेथड होगा वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में एक टेक्निक अप्लाई होती है जिसे कहते हैं मिड टर्म मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए खास तौर पे फैक्टराइज करने के लिए हम एक टेक्निक को बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे, वो कहलाती है मिड टर्म मेथड। यानी कि किसी भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम देखेंगे कि वहां पर मिड टर्म कौन सी है। इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हमें गिवन है और हमें ये बात पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर क्या होगा, हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इफ वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स, अगर हम दो ऐसे इंटीजर्स फाइंड कर लें, फॉर एग्जाम्पल एक का नाम है r, दूसरे का नाम है s, वो कैसे हासिल होगा? उसका जो सम है वो दो ऐसे इंटीजर्स होंगे r एंड s, उनका जो सम होगा वो b के इक्वल आ जाए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x आ जाए। और दूसरी जो अहम बात है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा r और s का, वो इक्वल आ जाए a और c के, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड के लिए हमने ये बात माइंड में रखनी है, हमने दो ऐसे इंटीजर्स तलाश करने हैं जिनको अगर सम किया जाए, जिनको अगर जमा किया जाए, अगर उनको ऐड किया जाए तो वो कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि b के इक्वल आ जाए। और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, उन दोनों को ज़रब दी जाए, तो उनका जो जवाब है वो a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, यानी कि सम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x आ जाए और जो प्रोडक्ट है वो आ जाए मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड c। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो जो चीजें हमने अभी सीखी वो मिड टर्म ब्रेक मेथड का हिस्सा हैं। तो जो बातें हमने माइंड में रखनी हैं वो इस तरह से हैं कि सम ऑफ द टू रिक्वायर्ड और डिजायर्ड इंटीजर्स, जो हमें दो इंटीजर चाहिए होंगे, उनका जो सम होगा वो इक्वल होगा द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म c। हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमने दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं r एंड s, उन दोनों का जो सम होगा वो हम फाइंड करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी हम फाइंड करेंगे और चेक करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि उनका सम इक्वल हो जाएगा उन दोनों के प्रोडक्ट के। अगर ऐसा हो गया तो वही हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे। एग्जांपल देखते हैं इसकी। सॉल्व 4 माइनस 32x इक्वल टू 17x स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहला काम हमने ये करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत आसान है। अब देखा जाए तो आप देख रहे हैं x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 17 है और उधर एंड पे दिया हुआ है -4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -68, यानी कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं 17 और -4। अच्छा अब देखें जरा, इन दोनों का जो 68 है, हमारे पास 17 और -4 का जो प्रोडक्ट है वो आ गया -68। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -68 आना चाहिए, लेकिन उनको जब ऐड करूं तो 32 आ जाए, यानी x वाला कोफिशिएंट आ जाए। तो वो दो नंबर हैं हमारे पास -2 एंड 34। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -68 आएगा और इन दोनों को जो ही हम ऐड करेंगे
तो 32 आ जाएगा। तो हमने वो दो इंटीजर्स फाइंड कर लिए, -2 एंड 34। ये टेबल से आप कर सकते हैं, जो 68 का टेबल है उसमें देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारे दोनों रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। अब हम इसको लिखेंगे, हम देखें 32x को हम लिख सकते हैं 34x - 2x। इसको मैंने लिख दिया, 17x स्क्वायर प्लस 34x - 2x - 4 = 0। अब देखें यहां से 17x कॉमन आ गया, अंदर रह गया x + 2, उधर से -2 कॉमन आया और x + 2 रह गया। और अब x + 2 जो है वो थ्रू आउट कॉमन आ गया और हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। और ये देखें x + 2 की वैल्यू भी 0 आ गई, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, लिहाजा दोनों में से कोई एक भी 0 हो सकता है और दोनों 0 हो सकते हैं। तो x + 2 भी 0 हो गया। इसका यहां से मतलब ये हुआ x आ गया -2, और दूसरी तरफ देखा जाए तो 17x - 2 0 हो गया, और 17x जो है वो इक्वल आ गया 2 के, और x आ गया 2/17। सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास, क्योंकि दो वैल्यूज आई हैं हमारे पास, x = -2 और x = 2/17। लिहाजा इसके सोल्यूशन सेट में दो रूट्स आएंगे। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की डिग्री है वो 2 होती है, लिहाजा जब उसको सॉल्व करेंगे तो दो रूट्स आएंगे। किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर पावर 3 है तो 3 रूट्स आते हैं, पावर अगर 2 है तो 2 आंसर आते हैं, 2 जवाब आते हैं सोल्यूशन सेट के लिए, 2 रूट्स आते हैं। अगर पावर 1 है तो 1 रूट होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसका जो प्रोसीजर है वो इस तरह से होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो प्रोटोकॉल है, उसके अंदर 4 स्टेप्स हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो मस्ट बी 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो कायम करें, बनाएं इसको। स्टेप 1 के अंदर हमने ये देखना है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है। अगर वो 1 है फिर तो ठीक है, स्टेप 1 करने की जरूरत है नहीं है। अगर वो 1 नहीं है तो फिर हमें उसको 1 बनाना पड़ेगा। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में हम ये करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। फिर हम ये देखेंगे कि उसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन सी है, हम उसको शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल है। स्टेप 3 के अंदर हम ऐड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x का उसका हाफ लेकर उसका स्क्वायर, add the square of the half of the coefficient of x on both sides of the given quadratic equation। स्टेप 3 बिल्कुल सिंपल है। हम ये देखेंगे कि स्टेप 1 और स्टेप 2 परफॉर्म करने के बाद जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है। वो जो x का कोएफिशिएंट होगा पहले हम उसका हाफ लेंगे, वो जो नंबर आएगा हमारे पास उसका स्क्वायर लेकर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। स्टेप 3 को हम यूं भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4 में हमने ये करना है दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेकर सिंपलीफाई कर देना है। स्टेप 4 के अंदर हम बड़ा सिंपल काम ये करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और उसको सिंपलीफाई कर देंगे। हमें कुछ फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे सिंपलीफिकेशन के लिए। वो ये दोनों फार्मूले हैं, देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले हमारे लिए वेल नोन हैं, हम पिछली क्लासेस में इनको अच्छे अंदाज में डिस्कस कर चुके हैं। अगर फार्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर जो है ये इसकी क्लोज फॉर्म है, और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इसकी ओपन फॉर्म है। हम बहुत दफा ऐसा होता है कि हम क्लोज फॉर्म से ओपन फॉर्म में जाते हैं, और बाज दफा ऐसा होता है कि हम ओपन फॉर्म से क्लोज फॉर्म में आते हैं। तो इस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर हम ये करेंगे कि ओपन फॉर्म से क्लोज फॉर्म में जाएंगे ताकि हम उसमें स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आप ये जो मैंने आपसे मेथड शेयर किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसके जो 4 स्टेप्स हमने
स्टडी किए, डिस्कस किए, इनको आप क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करके उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखें 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब देखा जाए तो स्टेप 1 के अंदर आप 7 को पहले रिमूव करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे इसको, और फिर स्टेप 2 परफॉर्म किया जाए, स्टेप 3 एंड देन स्टेप 4। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है। अगर हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसके अंदर एक कंडीशन है कि a का नॉन जीरो होना जरूरी है, तो फिर क्या होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। आइए उसको समझते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a जो है वो हम जानते हैं नॉन जीरो है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और यही इसकी जनरल फॉर्म है। वेरिएबल एक ही है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। इसके अंदर जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है और जो b है वो कोफिशिएंट ऑफ x है और जो c है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला अप्लाई करके हम x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। अब देखें कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले आपने इसको लिखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर आपने वहां से कंपेयर करना होगा और देखना होगा कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। फिर आप उसको ये नीचे फार्मूला दिया हुआ है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। इसके अंदर आप उन वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। हमारे पास अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इस तरह से है कि इक्वेशंस जो हैं वो रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म कौन सी होती हैं। हम यहां पर 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आइए उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। ये जो टाइप 1 की इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो इस तरह की होती हैं। इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर x पावर 4 वाली टर्म होगी और x क्यूब वाली टर्म नहीं होगी, फिर उसके बाद x स्क्वायर वाली टर्म होगी और उसके बाद फिर x वाली टर्म भी मिसिंग होगी और डायरेक्ट हमारे पास कांस्टेंट होगा इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल है 2x पावर 4 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है बट ये रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब देखें x पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0। आप ये देख रहे हैं इन दोनों में x क्यूब और x वाली टर्म्स मिसिंग हैं, सिर्फ x पावर 4 और x स्क्वायर वाली टर्म्स हैं। अच्छा, अब हम टाइप 2 को स्टडी करते हैं। इसके अंदर देखें ये खास फॉर्म होगी a p ऑफ x प्लस b ओवर p ऑफ x इक्वल टू c, यानी कि p ऑफ x एक हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो वो a के साथ भी मौजूद होगा और b के डिनोमिनेटर में होगा और इक्वल टू c होगा। ये स्ट्रक्चर, ये फ्रेम, ये इक्वेशन का जो ये टाइप है ये अपने माइंड में रखनी है। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। जैसे आप देख रहे हैं 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3 ओवर 2x माइनस 1 इक्वल टू 5। आप देख रहे हैं कि 2x माइनस 1 जो है उधर ऊपर 2 के साथ भी है और 2x माइनस 1 जो है वो 3 के डिनोमिनेटर में भी है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली टाइप 2 वाली इक्वेशन बन जाती है। इसको रिड्यूस करने का तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है, वो बुक में दिया हुआ है। अब देखा जाए तो स्मॉल a की जो वैल्यू है वो 2 है, स्मॉल b की जो वैल्यू है वो 3 है, स्मॉल c की जो वैल्यू है वो 5 है और जो p ऑफ x है वो 2x माइनस 1 है। टाइप नंबर 3 है रेसिप्रोकल इक्वेशंस। ये किस तरह की होती हैं? An equation is said to be a reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1 over x। मैथमेटिक्स के अंदर ऐसी इक्वेशंस होंगी जब वो हमारे सामने आएंगे
तो उनके अंदर हम ये किया करेंगे कि अगर जो वेरिएबल x है उसको रिप्लेस कर दिया जाए 1/x से और वो इक्वेशन पे कोई फर्क है ना पड़े, वो इक्वेशन जू की तू रहे, तो हम ये कहेंगे कि ये वाली इक्वेशन जो हैं ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं। आसान अल्फाज में हम वेरिएबल को उसी के रेसिप्रोकल से रिप्लेस कर देंगे तो इक्वेशन एज इट इज रहेगी, उस पर कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, तो वो कहलाएगी रेसिप्रोकल इक्वेशन। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस c इक्वल टू 0, ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0, x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं आप इनको चेक कर लें, x को रिप्लेस कर दें 1/x के साथ, तो आप देखेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद यही चीजें, यही इक्वेशंस वापस आ जाएंगी, इन पे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस इस तरह की इक्वेशन होती हैं जिसके अंदर अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए, जैसे 2 की पावर में x आ जाए, 3 की पावर में y आ जाए, 5 की पावर में z आ जाए, 7 की पावर में t आ जाए, तो कांस्टेंट की पावर में अगर वेरिएबल आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल टाइप की चीजें बन जाती हैं। एग्जांपल देखते हैं, देखिए a पावर x है, जैसे b पावर y हो जाए, 2 पावर x आ जाए, 3 पावर y आ जाए, 5 पावर z आ जाए। जैसे 4 इंटू, ये जो डॉट का निशान है ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, 4 इंटू 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ये देखें 3 पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 12 इंटू 3 पावर x माइनस 3, ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ये देखें 2 पावर x प्लस 64 इंटू 2 पावर माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0, ये भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो ये एग्जांपल्स थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की। इसके अंदर जो पांचवी टाइप हम स्टडी करेंगे वो है x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स प्लस d इक्वल टू k। इसके अंदर जो वेरिएबल है वो x है और जो कॉन्स्टेंट्स हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d और k, ये खास फॉर्म है, ये आपने माइंड में रखनी है। एग्जांपल देखें जरा इसकी, x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 8, x प्लस 5 इक्वल टू 19। ये जो चारों मैंने फैक्टर्स काउंट किए हैं, मैंने उनको बोला है आपके सामने, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 19, ये चारों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये इसकी सेकंड एग्जांपल है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 192। थर्ड एग्जांपल है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8, x प्लस 5 प्लस 360 इक्वल टू 0। अब हम खास टाइप की इक्वेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रेडिकल इक्वेशंस होती हैं। रेडिकल का मतलब ये होता है उसके अंदर स्क्वायर रूट आ जाए या क्यूब रूट आ जाए या फिफ्थ रूट आ जाए या सेवंथ रूट आ जाए, तो इस तरह की जो इक्वेशंस होंगे वो रेडिकल इक्वेशंस होंगी। आइए इनको एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर रेडिकल एक्सप्रेशंस आ जाएं, रेडिकल साइन आ जाए, तो वो रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखें, रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये देखें रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2 प्लस 1। ये जो इक्वेशंस हैं ये हमारे पास रेडिकल साइन के साथ हैं, तो ये रेडिकल इक्वेशंस हैं। अच्छा, टाइप 1 के अंदर जो खास फॉर्म होगी वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ये रेडिकल इक्वेशन की टाइप नंबर 1 है। एग्जांपल देखें जरा इसकी, ये देखें रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 1। सेकेंड एग्जांपल है 2x प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16। जो थर्ड है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 3। जो फोर्थ है हमारे पास 4x इक्वल टू रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। ये देखें फिफ्थ जो एग्जांपल है रूट 3x प्लस 100 माइनस x इक्वल टू 4। 4x इक्वल टू 13x प्लस 14 माइनस 3।
टाइप 2 जो है वो इस तरह की है, रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी इक्वल टू रूट एक्स प्लस सी। इस एग्जाम्पल देखें जरा, रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स प्लस 6 इक्वल टू रूट एक्स प्लस 11। सेकंड एग्जाम्पल देखें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 21 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 60। थर्ड एग्जाम्पल देखें जरा इसके, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 6। रेडिकल इक्वेशंस ऑफ टाइप 3। इस टाइप के अंदर आप ये देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंडर दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं और एक चीज कॉमन आ रही है दोनों जगह पर, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स कॉमन आ रहा है ऑन बोथ द प्लेसेस। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन इक्वल टू क्यू। ये हमारे पास तरह से टाइप है। इसके अंदर देखें जरा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स जो है वो दोनों जगह पर कॉमन आ रहा है। ये देखें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 36 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 3। आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x जो है वो दोनों जगह पर सेम आ रहा है, रिपीट हो रहा है। ये सेकंड एग्जांपल है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। अच्छा, ये थर्ड एग्जांपल देखें जरा इसकी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 3। अच्छा, फोर्थ एग्जांपल है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 5। हमने ये देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है वो कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास इस चैप्टर का ओवरव्यू था, चैप्टर नंबर 1 का। इसके अंदर यही चीजें हैं जो बुक में डिस्कस की गई हैं। मुझे उम्मीद है कि चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम असद राजा है, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूं ट्यूटोरिया.pk में। थैंक यू।